اور میں سمجھتا ہوں کہ آسما جہانگیر حقیقت میں ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ تحریک آج بھی جاری ہے۔ آپ سب خواتین و حضرات کی یہاں پر جو موجودگی ہے، یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ جدوجہد، یہ سوچ اور حق کی تلاش کی جستجو نہ تھمی ہے، نہ رکی ہے، اور نہ رکے گی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس جدوجہد میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں محترمہ آسما جہانگیر پینل کو جو کامیابی ملی، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آسما جہانگیر کی حق گوئی کا پرچم تھامنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ میں جناب آسن بھون اور ان کے رفقا کو الیکشن میں کامیابی پر، بہت عمدہ کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آسما جہانگیر کا پیغام ہر جگہ پر پہنچائیں گے۔ آسما جہانگیر صاحبہ سے میرا قریبی ربط اور تعلق رہا ہے، اور انہوں نے جب زندگی کی آخری سانسیں لیں تو اس وقت بھی آخری بات ان کی مجھ سے ہوئی تھی، ٹیلی فون کے اوپر۔ وہ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان اور ایک توانا آواز تھی، اور ہر مظلوم کی مدد کے لیے آمادہ رہنا، تیار رہنا ان کی فطرت کا حصہ تھا۔ کسی ظلم اور زیادتی کے خلاف پوری قوت سے ڈٹ جاتی تھی، اور میں اگر یہ کہوں کہ آسما جہانگیر تمام عمر عدل و انصاف اور سچ اور حق کی جنگ لڑتی رہی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بلا خوف سچ کہنے والی بہادر خاتون تھیں۔ آمریت کے اندھیرے ہوں، آئین پر شب خون ہو، عدلیہ کی آزادی چھیننے کا کوئی وار ہو، یا پھر جمہوری حکومتیں یا عدلیہ اپنے آئینی کردار سے تجاوز کرے، آسما جہانگیر پوری قوت سے مقابلہ کیا کرتی تھی۔ آج موجودہ جبر اور گھٹن کے ماحول میں یقین مانیں کہ آسما جہانگیر کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، میں وکلا برادری کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ملک میں آئین کی بالادستی کی بات ہو، قانون کی حکمرانی کا سوال ہو، عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد ہو، اظہار رائے کی آزادی خطرے میں ہو، وکلا برادری ہراول دستہ بن کر میدان میں موجود رہی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ انفارچونیٹلی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے، جب سے خطرناک پہلو قوم میں مسلسل گہری ہوتی مایوسی اور کربناک بے بسی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں مایوسی کی دلدل میں پھنستی اور دھنستی ہیں تو پھر اس قوم کے بقا کے سوال جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جیسے دانشور اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوم کی مایوسی کس طرح تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ آج 74 سالوں کے بعد قوم پھر سے سوال اٹھا رہی ہے، اور ہمیں جواب درکار ہے
कौम को जवाब दरकार है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को ये जवाब दरकार है। और जब तक इन 22 करोड़ अवाम को उनके बुनियादी सवालात का जवाब नहीं मिलेगा, हमारी हालत नहीं सुधरेगी। अगर सवाल करने वाले की जुबान खींच ली जाए तो इससे मुल्क तो हल नहीं होते, मसाइल तो हल नहीं होते। आज भी जुबान खींची गई है ना, ये अभी तारे शारे हमारे काट के, तो ये भी तो जुबान खींचने वाली बात है। क्या इससे मसले हल हो जाएंगे? और फिर सवाल करने वालों को उठा लेने या गायब कर देने से सवाल खत्म हो जाएंगे? बदकिस्मती से मौजूदा दौर जो है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स के हवाले से स्याह तरीन दौर साबित हुआ है। सियासी मुखालिफिन हो, सहाफी, कॉलम निगार या सच बोलने वाली कोई आवाज हो, उसको अपने सवाल की पादाश में गायब कर दिया जाता है या कैद कर दिया जाता है, या फिर जो कुछ होता है सलूक वो आप जानते हैं। गोलियां मारी जाती हैं, प्रोग्राम या कॉलम की इशाअत बंद हो जाती है, या फिर नौकरी से निकलवा दिया जाता है। ऐसे स्याह कवानीन तैयार किए गए जिनका मकसद सच बोलने की जुबान बंद करना है, और ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, अभी हाल ही में देखा है। और कब से देख रहे हैं कि आइन यहां टूटते हैं, कानून यहां टूटते हैं, अदालतें यहां टूटती हैं, और मनपसंद जजों से अपनी मर्जी के फैसले यहां लिए जाते हैं। डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी यहां मिलती है और रियासत के ऊपर रियासत यहां चलाई जाती है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियां यहां लगाई जाती हैं। वोट को इज्जत यहां नहीं मिलती और आरटीएस यहां बंद होता है। वोट यहां चोरी होता है। यहां मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ धरने करवाए जाते हैं, किए भी जाते हैं और करवाए भी जाते हैं। हुकूमतें यहां बनाई जाती हैं और गिराई जाती हैं। और पार्लियामेंट की सॉवरेंटी का हाल तो यह है कि चंद मिनटों में दर्जनों कवानीन बुलडोज किए जाते हैं, जैसे आपने 2 दिन पहले देखा है। ये हैं खवातीनों हजरात, ये हैं वो असबाब जो हमारे जवाल का बायस बनते हैं और जवाल का बायस बने हैं। और फिर कहा जाता है कि दुनिया हम पर हंसती है, कहा जाता है कि हम पर दुनिया पाबंदियां क्यों लगाती है, हमें कटहरे में क्यों खड़ा करती है, दुनिया में हमारे किरदार पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। सियासतदान या मीडिया ही नहीं, आज जज भी सच बोले तो नौकरी से हाथ धोना पड़ते हैं। क्या ये हम सब के लिए सोचो फिक्र का मकाम नहीं कि आज जज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं और जजों पर दबाव और ब्लैकमेलिंग से अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फैसले लिए जाते हैं। अखबारात में शहर सुर्खियां शाये हो रही हैं कि कैसे आला अदलिये के जज टेलीफोन कॉल्स के जरिए सजाएं दिलवाने और फिर जमानत ना देने के हुक्म सादर करते हैं। यह आपने देखा और सुना है। और अगर इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले मुंसफ ही ना इंसाफी करेंगे तो फिर मुझे आप बताएं कि मुआशरा क्यों कर और मुल्क क्यों कर तबाह बर्बाद नहीं होगा। खुदा ना खास्ता, क्या इस इदारे और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसफ को सोचना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया बैन अल-अक़वामी इंसाफ के इंडेक्स में
कहां खड़ी है? क्या हमने मार्शल लॉ को लेजिटिमाइज नहीं किया? क्या हमने फौजी डिक्टेटरों के हुक्म पर पार्लियामेंट को तोड़ने के बाद उसे कभी बहाल किया? क्या हमारी अदालतों ने फौजी डिक्टेटरों को आइन में तरमीम की इजाजत नहीं दी? ये सब कुछ आपके सामने होता रहा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसको ना हमने देखा हो, ना सुना हो, ना जाना हो। आइन ही हमारे इदारों की हदूद का तयन करता है और हमारे मसाइल के हल की यही चाबी है। आइन ने लकीर खींच दी है कि जिम्मेदारी क्या है और उसे किसे निभाना है, किसने निभाना है। इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या होगी कि इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरों ने सरेआम कहा, यहां तक कह दिया कि आइन कागज का एक टुकड़ा है जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। ये अल्फाज हैं, आपने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, टीवी पर भी सुने हैं, अखबारों में भी पढ़े हैं। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, हमें भी तो फिर अपना मुहासबा करना होगा और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना होगी। क्या इस कौम की किस्मत में यही लिख दिया गया है कि हमने दायरों का सफर ही जारी रखना है? 70 सालों से, 74 सालों से दायरों का सफर शुरू किया हुआ है और आज भी जारी है। क्या हमने अंधे, गूंगे या बहरे हैं, बहरे बन के रहना है? क्या हम भेड़ बकरियां हैं कि जिनको हाँक दिया जाए जिस तरह मर्जी? अब ये मामला पाकिस्तान की बका और सलामती का है और आइन पूरी वजाहत से बयान करता है, दो टोक बात करता है कि मुकद्दस वही है जो आइन की पासदारी करे और जो आइन की दीवारें फलांगे वो मुकद्दस नहीं बल्कि आइन का मुजरम है, मुल्क का गद्दार है, आइन का गद्दार है। और अगर आज हमने वक्त की पुकार न सुनी और अपनी इस्लाह न की तो हमारा मुस्तकबिल बहुत तारीक हो सकता है। पहले ही हमारी कौम बहुत हादसात का शिकार हो चुकी है। इस कौम और मुल्क की बका के साथ घिनौना खेल अब खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त हम सबको मिलकर एक कौमी बयानिए पर मुत्तफिक होने की जरूरत है। आइन की पासदारी, उसके साथ वफादारी और उसकी रोशनी में अपनी हदूद में रहकर फराइज की बजावरी, यही हमारे मसाइल का हल है। सॉरी। और इसके लिए वकला बरादरी, दानिश्वर, जमहूरियत पसंद मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक की तंजीमें अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं और इसमें तलबा भी शामिल होने चाहिए। इन सबको अपना किरदार अदा करना होगा और तारीख गवाह के जब मुआशरा अपने नस्ब-उल-ऐन को तय कर ले तो फिर हर रुकावट खत्म हो जाती है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का हक है कि उनको महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही से निजात मिले। उन्हें सेहत, तालीम, इंसाफ के बुनियादी हकूक मुयस्सर आए और ये किसी भीख या एहसान की सूरत में नहीं बल्कि अपने हक के तौर पे। दुनिया और खिते में वकूफ पजीर सूरत हाल पुकार पुकार कर हमसे इस्लाह अहवाल की दहाइयां दे रही है। इसलिए मैंने बार बार कहा
कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, और हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। तो हमारे खिलाफ डॉन लीक्स का ड्रामा रचाया गया, झूठे मुकदमात बनाकर सजाएं दिलवाई गई, और फिर आपने देखा है कि किस तरह से रुस्वा किया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सबको पाकिस्तान की खातिर और दस्तूर और आइन की हुक्मरानी की खातिर, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत की खातिर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा, एक कौमी एजेंडा बनाना होगा और उसे कौमी तहरीक की शक्ल देना होगी। मेरी गुजारिश है कि इस कॉन्फ्रेंस में दी गई तमाम तजावीज़ और सिफारिशात की रोशनी में फौरी हिकमत अमली मुरतब की जाए। सब लोग बैठे सर जोड़कर और एक हिकमत अमली मुरतब की जाए ताकि अमली जद्दोजहद की राह अपनाई जा सके। ये बहुत जरूरी है। हम बहुत लेट हो चुके हैं और मजीद ताखीर के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। इस काम को आज ही बैठ के किया जाए, आज ही, ताकि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और जो कुछ हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं, और जो पूरा मुल्क कह रहा है, पूरी कौम कह रही है, उस पे फौरी तौर पे फिर अमल शुरू किया जाए और मुल्क को इस गहरी खाई में जो हम गिर चुके हैं उससे दोबारा उठाया जा सके, निकाला जा सके और दोबारा अपने मंजिल की तरफ हम इसको रवाना कर सके। अगर ऐसा ना किया तो फिर इसको दोबारा निकालना, उठाना नामुमकिन हो जाएगा और तारीख आपको और मुझे, हम सबको माफ नहीं करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।